आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात बहुत से लोगों से कराते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक खास खातून से कराएंगे जो कि जिन्होंने अपनी तालीम बोर्डिंग स्कूल में दिल्ली में हासिल की, बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में। और फिर उसके बाद आपने अपनी शादी हो गई उसके बाद, और शादी के बाद भी आपने अपनी तालीम जारी रखी। मास कम्युनिकेशन में आपने ग्रेजुएशन की तालीम अपनी जारी रखी आज। और फिर वो एज ए हाउस वाइफ उन्होंने रही हैं। एज ए वाइफ, हाउस वाइफ उनका बहुत जबरदस्त रोल रहा है अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में। तो ये आज हमारी स्पेशल एपिसोड होगा कि हम ऐसी खातून से बात कराएंगे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी एक मदर की हैसियत से, माँ की हैसियत से और एक हाउसवाइफ होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। और अब चूंकि उनके पास वक्त है, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जिम्मेदारियां अब उतना वक्त बच्चों को नहीं देना पड़ता शायद, तो वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही हैं और अब आगे क्या करना चाहती हैं, सब जानेंगे हम नाजिया अख्तर से। नाजिया अख्तर हमारी आज की खास मेहमान है। नाजिया अख्तर, वेलकम टू दिस सीरीज। Assalamualaikum, sir. I'm very happy to talk to you after such a long time, after 22 years. Sir, it's in fact a journey for me after coming from school, and I was like married at a very tender age. But then I handled my responsibility with full spirit. Whatever best I could give, I just did for my children and for my family. And alhamdulillah, my children have grown up, and mashallah, so they have been groomed up well. So now my eldest son, I've got 3 kids, and the eldest one is in UK. He's studying in Northampton. This is the first year he has gone. नाज़िया, आपके जो हैं 3 बच्चे हैं, आपके एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। जी, 2 बेटियां हैं सर, and then alhamdulillah the eldest one, the daughter, she's in class 9 now, she's going to be in class 10. Okay. And now I think I've got ample of time for myself, so I think something I have to do for the society so that you can for the welfare of the society, because I think I've got now, like, I've done half of my duty, and I'm like, I've got ample of time for myself now. So I did my online education after schooling. I did my online education and did my graduation, but then I've not been working. I've just been at home, and I think I've been a homemaker. I think this is also one of the toughest job to be the homemaker, because ये जो वर्ड यूज किया ना नाजिया तुमने, होममेकर, ये बहुत जबरदस्त वर्ड है। जाहिर सी बात है कि होममेकर जो है really, building home is very difficult. बिल्कुल। To build a house is easy, but to build a home is very difficult. You need a lot of sacrifices, a lot of pain you have to go through. And then eventually you don't work for any kind of interest, or you don't work for the hope of any kind of salary hike or any kind of reward. We just work for the satisfaction and happiness, and to bring, and this is the best reward we get it. So I think I just told all the kids and everyone, whoever I meet, that first you have to be a good human being first, and then you can be whatever you want to be in life, be doctor, be it engineer, or anything in life. Because it's very important to be a good human being, so that you can be over in this world also, and in hereafter also, you can contribute towards something to the society. So as a human being, especially as a Muslim human being, we have got a lot of responsibilities to handle. So we can't take it anything very lightly, or we are going to be answerable for everything that we are doing. So it's like that. I have told my children, even for me also, today also, I think that every step, whatever I do, I should do for the benefit for myself and for the family and for the society. This is what we are born for, and we have to face Allah, and we have to give that, have to be answerable for what we have done in this world. So I think our life is very important. तो एक बार ही जिंदगी मिलती है, हम लोग को 2 बार तो मिल ही लेंगे. So whatever best we can do, I think we should do our best. Yes. And then Allah Pak is there best to see everything. तो नाजिया, मतलब आपने, जैसे आप हमदर्द में पढ़ती थी, बोर्डिंग स्कूल में थी, जो कि बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। हम उस नाजिया को जानते हैं जो उस वक्त 11th 12th क्लास में बोर्डिंग स्कूल में थी, उस नाजिया को जानते हैं। तो अब उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बच्चों की अपब्रिंगिंग में क्या कुछ डिफिकल्टीज आपको आई एज ए मदर? कुछ मुश्किलात आपके सामने आई, या बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया? बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बेटा यूके पहुंच गया लंदन, और बेटी 9th में है, और उससे छोटी एक और बेटी है। वो किस क्लास में जो छोटी बेटी है?
Yes, yes, sir. She is in class 7. Okay. Sir, actually, I think after being a mother, the woman completes जो भी उसका phases है, और I think it's a journey, sir. We get to learn so many things from our kids. No, actually, when we are when the child is born, then I think the child becomes the father or mother of the mother. So it is like they are teaching us all the time. So I grew up with my kids. I just grew up myself. I nurtured myself, and in fact I learned a lot of things from them. So it's a kind of two-way relationship. I can't say कि सिर्फ हमने ही उन्होंने सीखा. I think I've also learned, and I think till today I'm learning something or the other, and I really want to learn. I want to do something. It's like हमें लगता है कि we are just wasting energy, just इधर-उधर दिमाग लगा के, but I think we should be more productive. हाँ, और बच्चों से हमें एनर्जी बहुत मिलती है. Yeah, we get lot of energy, और हर वक्त वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी बातें कभी-कभी कर देते हैं कि इंसान सोचता रह जाता है कि really we are in deep thought that what but I try to give them a balanced life, sir. Like they are doing the schooling also, and they are going for diniyat and all. So I just give them the worldly and this dini knowledge, everything. They should know everything, what is good and what is bad for them, because these are the generations which are going to be the future of India. So it's like बच्चों को जब सुबह स्कूल के लिए तैयार करती होंगी और हस्बैंड भी आपके तैयार होते होंगे, उस वक्त कुछ परेशानी नहीं होती थी? Sir, actually, alhamdulillah, my husband is not a service man, so he's like he's a businessman. So ऐसा कोई problem था, because first my children goes out, after that he gets ready. So I get a lot of time, and then they are not toddlers, care to dress them up. फिर तो हस्बैंड से सपोर्ट भी मिलता होगा बच्चों को तैयार करने में. Sir, support, what can you say? I think I myself was a big support system, or I think मेरा जो बचपना है, I think it's still there. It's somewhere I have not, my childishness is still there. So I think I don't expect much from the people, but whatever best I can do, what I do. And it's like my children are my best friends. They just talk to me. They just that is the best part, Nazia. That is the best part. अगर आप बच्चों के दोस्त बन जाते हैं और बच्चों को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो that is the best thing. They are just more like my friends, and they are my family. So they are, my life just revolves around them. So I think मेरे बच्चे अब उन लोगों को भी समझाते रहते हैं, but हम बोलते हैं कि बेटा now I want to do something for myself and towards towards the society, whatever little effort we can do, I think we should try. क्योंकि वो है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हर चीज का we have to be accountable for what we are doing. तो हम अच्छा काम करें ताकि वहाँ पे जो accountability जो हम लोग को good deeds का खुले, तो it should be like कि चलो इन्होंने अच्छा काम करके आए. बिल्कुल. ये तो एक रोल रहा नाजिया, एज ए मदर आपने बहुत अच्छे से बच्चों की तरबियत की, और माशाल्लाह एक बच्चा जो है लंदन पहुंच गया, एक बेटी 9th में, एक 7th में, अब बड़े हो गए हैं. अब उतना ज्यादा काम जो है वो इनके लिए, या वक्त आपको काफी मिल जाता होगा. जी. तो अब जो वक्त आपको मिल रहा है, आप सोचती हैं कि आपको कुछ करना है, जैसा कि आपने अपना बताया कि आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, चूंकि अब आपके पास वक्त है, क्या करना चाहती हैं, क्या है जहन में आपके? सर पहले तो there are a lot of things that I have not actually materialized. अभी तो सब दिमाग में है सब. सर if I will whatever I'll do, I just let you know. लेकिन ये कि अभी तो हमने एक बुक लिखा है जो कि I'm just trying to translate the gist of hadith in very short way in a pocket book, so that becomes easily accessible for the young generations कि वो अच्छे से पढ़ सके, वो अच्छे से समझ सके what is actually did. It's not that difficult, it's very easy to understand. तो जो लोगों को है ना कि जो चीज हम knowledge दे सकते हैं, first and try to do that, कि वो book publish हो जाए मेरे अच्छे से. After that publishing, maybe I'll do some kind of other work which I could possibly, I can't say right now, but yes, there is something in my mind going on to open NGO some kind of ऐसा कुछ काम करना. नहीं, वो जो कुछ भी माइंड में आता है उसको लिख लो, उसको एक लिख लो कि क्या चीजें हैं जहन में आती हैं, क्या कर सकते हैं, उसको आप लिख लेंगी तो फिर आपका जहन बनेगा, उसकी एक प्लानिंग आप कर सकेंगी कि ये चीजें हैं. एनजीओ तो यस, एनजीओ तो बनाना जी, I think उसकी जरूरत है. and I think especially the Muslim community, they are very backward. मतलब बेचारे को बहुत सारे privileges नहीं मिल पाते, they are underprivileged. So I think awareness is very important for them, कि पहले वो aware हो जाए, उनको करना क्या है, कहाँ direction जाना है, उसके बाद I think it's a step by step process कि हम क्या करते हैं. तो I'll just say
नहीं, जैसे आप नाजिया आप कानपुर में रहती हैं। कानपुर एक ऐसा शहर है जो बड़ा शहर है, लेदर इंडस्ट्रीज वहां होती थी, अब मुझे नहीं मालूम, काफी लेदर इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है उसमें, बहुत सी कंपनीज बंद हुई हैं, लेकिन वहाँ गुर्बत भी है ऐसे शहरों में। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आप जो ऐसी बहुत सारी गरीब बच्चियां हैं उनके लिए आप कोई छोटी ऐसी एनजीओ शुरू करें, उसमें आप उनको कुछ तालीम दें या कुछ उनको सिखाएं, जो आपके पास हुनर है उस तरह की चीजें आप उन बच्चियों को जो गरीब घरानों से आती हैं उनके लिए आप कोई काम शुरू कर सकती हैं। डेफिनेटली सर, वो तो व्हेन आई विल स्टार्ट डूइंग दैट, आई थिंक आई हैव टू जस्ट, ये तो बात आपने सही कही है, हमने भी सोचा, आई थिंक फॉर द वुमेन ओनली, आई थिंक उन लोग के लिए ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इफ वी एजुकेट अ वुमन वी आर एजुकेटिंग एक्चुअली सोसाइटी, वी आर नॉट एजुकेटेड। इसीलिए माँ का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ का एजुकेटेड होने का मतलब है कि वो पूरी फैमिली को आपने एजुकेटेड कर दिया, बिकॉज शी विल टेक केयर ऑफ, वो बच्चों को अच्छे से ध्यान रखेगी, बच्चों की तरबियत अच्छे से करेगी। वो एक, इसलिए लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी है, बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है। जी जी सर, दिस इज फॉर जी। अभी तो मेरी दोनों लड़कियां हैं, जिस गिव देम के पढ़ाई तुमको करना है एंड यू हैव टू डू समथिंग यार, करके उनके दिमाग में हर वक्त आई जस्ट कीप ऑन मोटिवेटिंग देम कि यू जस्ट डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम एंड डोंट थिंक दैट यू विल बी स्पेयर्ड इफ यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मदर की छुड़ा देंगे और तुमसे काम करवाएंगे। आई विल जस्ट, तुमको किसी हाल में भी यू हैव टू एक्सेल। हाँ, तो ये जो बड़ी बेटी है आपकी, अब वो 9th क्लास में आ गई है, तो उसको क्या लगता है कि वो क्या करना चाहती है बड़े होकर के? कुछ आप उसको बात करती होंगी, शाम में बैठ करके डिस्कशन होता होगा, उसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है? सर आई थिंक वो बिजनेस में ही she wants to do business only, I think her father's business, फादर उसको की कुछ तरह फैशनेबल फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। एक्चुअली शी वाज टेलिंग द अदर डे कि मुझे पर्सेस वगैरह फैशन डिजाइनिंग करना है, ये बोलने का कि मतलब मे बी लेडीज पर्स एंड दिस, बट शी विल गो ऑन दिस फैशन इंडस्ट्री जिसमें लेदर गुड्स प्रोडक्ट बना सके, जैसे कि लेदर पर्सेस है, व्हाटएवर द लेडी प्रोडक्ट्स व्हाटएवर, तो आई थिंक शी कैन डू दैट। And actually lot of things that keeps on coming into their minds, अभी तो उन लोग को बहुत सारा स्ट्रीम दिखता है, समझ में नहीं आता है, so I think eventually when they'll pass 10 then they will be able to decide finally कि करना क्या है। हाँ बिल्कुल, नहीं बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है उनको हमें सेल्स पे मॉडलिंग करना है, तो उन बच्चों को हमें एनकरेज करना चाहिए जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। तो हमने बोला कि सी व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट थिंक ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, कोई और स्ट्रीम नहीं कि you can't go for modeling and all because we don't belong to that kind of background, but yes I tell her to do business, I think she wants to do। और जो छोटी वाली है उसको हमने कह रखा है कि you have to be a doctor, so I want a complete balanced लेकिन ये भी देखना होगा कि आप कह तो रही हैं कि उनको डॉक्टर बनाना है, लेकिन क्या उनका इंटरेस्ट साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उनका वो इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, उनको सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अभी 7th क्लास में, जाहिर है अभी 7th में तो उनको पता लगता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें अच्छा लगता है। जी। अगर साइंस अच्छी लगती है तो सर्टेनली व्हाई नॉट, शी कैन बी अ डॉक्टर, लेकिन हमें अपनी मर्जी, पेरेंट्स को अपनी मर्जी तो उनके ऊपर नहीं। No sir, हमने I have always given space to my children, I always told them whatever you want to do but do something in excellence way, excellent level, do your best, normal level पे, because we have been asked to do in the best possible way, to do in the excellent way, आप मीडियोकर बन के नहीं रहना है, because क्योंकि जब जी सर, ये हमने उनको बोल रखा है कि you have to be the best of whatever field you choose to be। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नाजिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और किसी दिन जो है ना मैं आपकी जो बड़ी बेटी है 9th क्लास में, उससे बात करूंगा किसी रोज, है ना? जी हाँ, उससे पूछेंगे कि वो क्या कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती है, उसके क्या बड़े सपने हैं। यंग माइंड्स और बिग ड्रीम हमारी एक सीरीज है, उस सीरीज में हम उससे बात करेंगे एक दिन, ठीक है? जी सर, आई थिंक यू कैन टॉक टू माय सन आल्सो, ही इज इन यूके। Yes, I will speak to him also, give me his number, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, तो आप कोऑर्डिनेट विद बोथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हम जल्दी जो है बिटिया से और बेटे से बात करेंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच फॉर
देखा दोस्तों आपने, ये थी हमारी आज की स्पेशल मेहमान, हमारी खास मेहमान नाजिया अख्तर, जिन्होंने बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल में तालीम हासिल की और उसके बाद अपने घर की जिम्मेदारी निभाई, 3 बच्चों की तालीम और उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी तरबियत बहुत अच्छे से की। बेटा आपका लंदन में पढ़ रहा है, बेटी 9th में है और एक बेटी 7th क्लास में है, और अब वो कुछ समाज के लिए सोच रही हैं कि वो क्या करें, किस तरीके से जो है वो समाज को कुछ दे सकें और समाज की खिदमत कर सकें। हमें उम्मीद है कि वो जो कुछ भी करेंगी एक NGO बना करके जरूर समाज की खिदमत करेंगी और जरूर समाज की खिदमत में अपने आप को अपना कुछ कंट्रीब्यूशन वो जरूर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।